Illustration 4 was for homework, right? No. Yeah. Illustration 4 was for homework. Check the answers. Illustration 4. Both by traditional and modern, you had to classify. Classify the following. Okay. First one, prepaid rent. Jia Savla. What's the answer? Personal and asset. Very good. Personal and asset. In traditional, it is personal. In modern, it is asset. Right? In traditional, it is personal. In modern, it is asset. Prepaid expense हमने कल डिस्कस किया था, याद है? Personal and asset. Salary, Nishant Parekh. What's the answer? Salary. Nominal and expense. Very good. Bank loan, Isha. What is the answer for bank loan? Personal and liability. Very good. Personal and liability. All liabilities are personal. Bank loan is also personal. Dena baki hai. Motor car. Kashish, can you tell me what is the answer for motor car? Real and asset. Very good. Real and assets. Rent payable. Rent payable. Arushi, rent payable. Personal and liability. Personal and liability. Very good. Personal and liabilities. Dena baki hai. Bad debts. Anika, have you tried bad debts? Nominal and expense. Very good. Nominal and expense. Perfect. Okay. Expense and it is all expenses are nominal. All incomes are nominal. Perfect. Then copyrights. Tanya, what are copyrights? Sir, real and income. Real and Income. copyrights. Assets. Intangible asset hai. Okay. Intangible asset. Copyrights are real and assets. Interest received. Priyal Gangar, have you tried interest received? Interest received. Sorry. Priyal Gangar, interest received is? आवाज क्रैक हो रहा है तुम्हारा. Bansi, can you tell me interest received? Nominal and income. Yes, perfect. Nominal and income. Interest received is nominal and income. Very correct. Then we have Heath. Can you tell me dividend received? What is dividend received? Heath Kamani. Heath, dividend received. Sir, nominal and income. Income, perfect. Shares में invest करोगे तो आपको dividend मिलेगा ना हर साल. So it's nominal and income. Perfect. Nominal and income. Premises. Gargi, what are premises? Premises are real and asset. Very good. Real and assets. Rudra, insurance premium. Nominal and expense. Nominal and expense. Perfect. Heth Gajra, audit fees. What is audit fee? Nominal and expense. Perfect. Nominal and expense. All of you clear with all 12 terms? Any doubt, anyone? Perfect. Comfortable? Yes. With the first ones. First one was prepaid rent. Yeah. So won't insurance premium come in personal because it is drawing? No. Life insurance premium is drawings. There are two types of insurance. Remember, general insurance and life insurance. So life insurance premium मतलब वो drawings है तो personal. ये normal insurance premium मतलब business का expense जो assets और goods पे निकालते हो ना आप insurance उसका premium. Okay? So sir, prepaid rent क्या आएगा? Prepaid rent is personal and assets. Prepaid rent is personal and asset. Representative personal. Advance में पैसा दिया है, benefit मिलना बाकी है. किसी से मिलना बाकी है. So prepaid, outstanding, receivable, received in advance. All four are personal. Representative personal.
एंड एसेट्स. एडवांस में दे दिया है, बेनिफिट मिलना बाकी है. बेनिफिट मिलना बाकी. So do we need to make a separate column for personal and representative personal? नहीं नहीं नहीं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल सब पर्सनल में ही आता है. ऑल फॉल अंडर द सेम पर्सनल. ओके, खाली तीन ही है, ट्रेडिशनल में तीन ही है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और एक वैल्यूएशन है. वो वैल्यूएशन हम लोग आगे करेंगे और आगे. तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल बेसिकली, एंड एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंस. सिंपल. इज दैट क्लियर? Got it? Now let's proceed with the problem. Take the same journal. Let's finish off those last 3 entries. Continue with the next one. So you have not started screen sharing. Yeah. 1 minute. See. Screen should be there now. बराबर है. Let's continue with where we left. Okay. ट्रांजैक्शन नंबर 24 हमने किया था. 26th वाला देख लो. Last 3 are left from this sum. Sum number 11. Sum number 11 का 26th June 2011. Continuing with that 26th part. Okay. ऊपर वाला हमने यहाँ तक किया हुआ है. 24 तक हमने किया हुआ है, right? 24 के बाद I am continuing with 26. Paid house rent. Can you all tell me what are the two accounts? Paid house. Drawings account and rent account. Rent payable account and cash account. Drawings account and cash account. Paid Drawings house account and rent. cash. House rent तो दिमाग लगाना है. हाउस किसका होता है? बिजनेस का होता है कि ओनर का होता है? Man. हाउस किसका होता है? Owner. Just a second. I think there's some network issue.
some network problem. Tell me, house किसका होता है? ओनर का होता है कि बिजनेस का होता है? Owner. ओनर का होता है। तो ओनर का अगर हाउस है तो हाउस रेंट भी किसका रहेगा? ओनर का ही रहेगा, बराबर है। तो यहाँ पे क्यों दिख रहा है? यहाँ पे तो बिजनेस का एक्सपेंस और इनकम दिखना चाहिए, राइट? एंटिटी कंसेप्ट, रिमेंबर द फर्स्ट कंसेप्ट. Business and businessman are two separate entities, and we are supposed to think from whose point of view? Business. बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो बिजनेस के लिए हाउस रेंट बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है. हाउस रेंट दिखने का मतलब क्या हुआ? ओनर ने बिजनेस में से पैसा निकाला फॉर पेइंग द घर का भाड़ा. ओनर टुक अवे मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर पेइंग घर का भाड़ा. इज दैट क्लियर? सो व्हाट विल बी द टू अकाउंट्स? Drawings account and cash. ड्रॉइंग्स एंड कैश. रेंट नहीं मेरे भाई, ड्रॉइंग्स एंड कैश. रेंट क्यों आएगा? रेंट तो बिजनेस का एक्सपेंस है. आर यू गेटिंग इट? ओनर निकाल के लेके गया. वो याद है जेठालाल वाला एग्जांपल? ओनर कुछ भी लेके जाए, टप्पू की फीस के लिए पैसा लेके जाए, बापूजी को मोबाइल खरीद के लेके जाए बिजनेस में से, दे के दे दे, बबीता जी के लिए फर्नीचर लेके जाए बिजनेस में से, सबके लिए इट इज ड्रॉइंग्स. सबके लिए इट इज ड्रॉइंग्स. ओके, ओनर अगर विड्रॉ करके लेके जा रहा है तो इट इज सिंपली ड्रॉइंग्स. ओनर इज द रिसीवर एंड व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस? बिजनेस में से क्या जा रहा है बाहर? कैश जा रहा है. तो हम लोग ये नहीं देखते कि ओनर काय के लिए पैसा लेके जा रहा है. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. ओके, वी आर जस्ट, देखो हम लोग बिजनेस है, बिजनेस क्या देखेगा? ओनर आया, पैसा लेके गया. अब वो उस पैसे से हाउस रेंट पे करे, लाइफ इंश्योरेंस पे करे, डॉटर स्कूल फीस, सन स्कूल फीस पे करे, पर्सनल हॉलीडे एक्सपेंस पे करे, नवरात्रि का डांडिया पास खरीदे. वी आर नॉट बॉदर्ड. वो तो ओनर लेके गया. ओनर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड कैश इज गोइंग out. Credit what goes out. Did you all understand? So what are the two accounts? Drawings and cash. Rule applicable will be drawings account debited, debit the receiver, to cash account. It will be drawings account debit to cash account. Drawings account debit to cash account. And so if it is not specified that house rent, only rent is given then? Only rent is given, then it is business का expense. Only rent, then it is business का rent. Business का office rent हो गया वो. Then it is simply rent to cash. House rent मतलब owner का है, personal हो गया. So that is drawings to cash. Okay. So how much is your house rent paid? That is 2000. So drawings account debit to cash account. तो कभी भी याद रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच बीच में दे देंगे. पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड हाउस रेंट, पेड फॉर नवरात्रि पासेस. तो थोड़ा सोचने का कि भैया ये सब चीजें कौन करता है? ओनर करता है. बिजनेस तो करेगा नहीं ये सब चीजें, तो ये सब पर्सनल एक्सपेंस हो गए. ऑल दीज आर ड्रॉइंग्स. ऑल दीज आर ड्रॉइंग्स. इज दैट क्लियर? इंक्लूडिंग इनकम टैक्स. याद है सोल प्रोप्राइटरशिप का इनकम टैक्स? इनकम टैक्स इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस. बाकी सब बिजनेस पे अलग से इनकम टैक्स लगता है. सोल प्रोप्राइटर बिजनेस पे कोई अलग इनकम टैक्स नहीं होता है. जो ओनर का इनकम टैक्स है वही है, मतलब ओनर बिजनेस से लेके जाके खुद का टैक्स पे कर रहा है. तो इनकम टैक्स इज ऑल्सो ड्रॉइंग्स, रिमेंबर दैट. इनकम टैक्स इज ऑल्सो ड्रॉइंग्स. ओके, But corporate tax is not drawings, no? corporate tax is not drawings. Corporate tax is on companies, joint stock companies. I told you the other forms of organization, whether you have partnership, whether you have corporates, private limited company, public limited company, all these have separate taxes. उसमें ओनर का इनकम टैक्स और बिजनेस का टैक्स अलग होता है. बट दिस इज प्योरली ऑफ ओनर, इनकम टैक्स फॉर सोल प्रोप्राइटर. ओके, तो नरेशन में आप लिख सकते हो बीइंग हाउस रेंट पेड. बीइंग हाउस रेंट पेड. देन 29th वन देखो. 29th, sold goods were 10,000 to Divakar, who paid us 6,000 on account. हमने दिवाकर को गुड्स बेचा और उसने 6,000 रुपए इमीडिएटली अपने को पैसे दे दिए. तो थिंक एंड टेल मी, पहले तो इज द ट्रांजैक्शन ऑन कैश और क्रेडिट और पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट? Partly cash, partly. पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट. ऑल ऑफ यू एग्री ऑन दैट? हीरो हीरोइन लोग वीडियो ऑन कर लो. ऑल द वीडियो शुड बी ऑन. Celebrity people.
Dianshi, Jash, come on. पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट है, कैसे पता चला अपने को? How do we come to know whether it is partly cash partly credit? You read properly. What have they given? You have sold goods and you received half, not half, part of the money. 6,000 rupees मिला आपको, right? तो मुझे पहले बताओ, what if you would have goods entirely on cash basis? पूरा अगर आपका कैश सेल होता तो एंट्री क्या होता आपके बुक्स में? Cash account debit to sales account. Cash account debit to sales account. Agree all of you? Cash account debit to sales account. Just a second. सर थोड़ा लेक्चर में हूँ, आपको कॉल बैक करूँ? हाँ? Cash account debit to sales. All of you agree on that? पैसा आया and credit all incomes and gains. अगर आपने पूरा का पूरा कैश में बेचा होता तो एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट? What if you would have sold entirely on credit to Divakar? Divakar account debit to Then it would have been Divakar account debit to sales, debit the receiver and credit all incomes and gains. ये दो पार्ट समझ में आ गए आपको? पूरा का पूरा कैश में होता तो कैश आया, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. पूरा क्रेडिट पे होता तो दिवाकर टू सेल्स. अब दोनों हो रहा है, कैश भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, और सेम डे पे एंट्री होती है जब आपका कॉमन क्रेडिट होता है. तो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? Common credit. Club the entry. Combine the entry. would be common entry. Combined entry क्या बनेगा? कोई बता सकता है मुझे? Cash Cash account account debit, debit, Divakar account debit, debit, sales account. Very good. Cash account debit, Divakar account debit to sales account. Perfect. Cash आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट. दिवाकर डेटर बढ़ रहा है, मॉडर्न कंसेप्ट डेबिट. सेल्स इनकम बढ़ रही है, मॉडर्न कंसेप्ट क्रेडिट. बराबर है? तो कैश दिवाकर टू सेल्स. अभी आराम से देख के बताओ, टोटल गुड्स कितने का सेल किया? सेल्स की टोटल 10,000. 10,000. उसमें से कैश कितना मिला? 6,000. एंड 4,000 क्या हो गया? क्रेडिट हो गया. मतलब हमें दिवाकर से पैसा लेना है कि उसको पैसा देना है? आराम से सोचना. लेना है. 4,000 is to be taken. All of you got that? These are हमें debtor. दिवाकर से पैसा लेना बाकी है. कितना लेना बाकी है? कोई बता सकता है? 4,000. 4,000 रुपीज लेना बाकी है. 4,000 कब देगा? जब मर्जी देगा. 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, क्रेडिट पीरियड खत्म होने के बाद. बराबर है? तो आफ्टर 15-20 days he will pay. दिवाकर will pay us after 15-20 days. अच्छा, 15-20 दिन बाद जब दिवाकर अपने को पैसा देगा, सुनो ध्यान से सब लोग, 15-20 days बाद जब दिवाकर will pay us that 4,000, what entry you will pass for that? Divakar account. Cash account. Divakar Cash account to Divakar. Cash account to Divakar. Cash account to Divakar. Cash will come in at that point of time to debit what comes in, and Divakar is the giver. So credit the giver. All of you got that? So that day when he pays you the money, that time it will be cash account debit to Divakar account. Cash to Divakar. अभी नहीं, अभी ये नहीं करना है. जब पैसा देगा. Why not cash to sales? How come it will be sales? Sales तो already हो गया अभी. वापस थोड़ी उसको गुड्स बेचोगे 15 दिन बाद. सेल्स तो ऑलरेडी कर दिया आपने. अब तो खाली दिवाकर से पैसा लेना बाकी था. Got it? And sir, if we offer a cash discount at that time, then it will be cash account debit, discount allowed account debit to Divakar account. Perfect. Cash account debit, discount allowed debit to Divakar. Very true. Perfect. जैसे हमने वो ऊपर वाले में किया था, नैना और दूसरा कौन सा था वो, रोमा नैना वाला एग्जांपल किया था, सेम. Okay. But sir, is it possible that if he is paying 6,000 immediately, that time we are not giving cash discount, and if he is giving early payment, that time we are giving cash discount? जनरली ऐसा नहीं होता है. अगर इमीडिएट पेमेंट किया तो भी आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ता है. ट्रू. तो जनरली अगर इमीडिएट पेमेंट में नहीं है तो बाद में मिलने का चांस नहीं है. बट अभी पॉलिसी है बिजनेस की, बीच में चेंज हो गई, बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो सभी डेटर को नोटिस भेज दिया कि किसमें से कोई जल्दी पे करेगा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा. हो सकता है. गॉट इट? पॉसिबल है. बिजनेस अपने डेटर को फोन, बिजनेस को सपोज अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ गई तो डेटर को फोन करके बोल सकता है, भैया जल्दी पे कर दो, 10 दिन जल्दी पे कर दो, 20 दिन जल्दी पे कर दो, आपको इतना इतना डिस्काउंट मिलेगा, पे करना है तो करो.
तो कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बाद में डिस्काउंट आ सकता है आपके पास। समझ में आया? लास्ट वन, पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम. ओके, पोस्टेज एंड टेलीग्राम क्या होता है? व्हाट इज पोस्टेज एंड टेलीग्राम? Expense. Sundry Expense. Expense. Okay, you can put it under postage or you can put it under sundry also. Postage and telegram का भी हेड बना सकते हो या फिर sundry expense भी लिख सकते हो, वो तो दोनों में से कोई भी अकाउंट चलेगा. So I am putting it under postage and telegram. So debit all expense. And what is the second account, guys? Cash. Cash. Cash goes out. So entry क्या बनेगा? Postage and telegram account debit. Postage and telegram account debit to cash account. Postage and telegram account debit to cash account, 5,000. Postage and telegram account debit to cash account, being postage expense paid. Being postage expense paid. All of you know what is postage expense? अब काफी आउटडेटेड हो रहा है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो आपको करना पड़ेगा. पोस्टल डिपार्टमेंट का पोस्ट कार्ड, स्पीड पोस्ट, लेटर्स, कुरियर्स, ओके, ये सब चीजें तुम्हारा पोस्टेज एंड टेलीग्राम में जाता है. पोस्टेज एंड टेलीग्राम टू कैश. इज दैट क्लियर? ऑल ऑफ यू गॉट दैट? So, Yeah. can you explain the Mona and Naina how to calculate profit? प्रॉफिट ऑफ मोना एंड नैना. मोना एंड नैना का प्रॉफिट देखो मैंने यहाँ पर किया हुआ है. हाउ डू यू कैलकुलेट एट प्रॉफिट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट लॉस कैसे ढूंढा जाता है? बाय इनकम माइनस एक्सपेंस. इनकम माइनस एक्सपेंस. तो मोना नैना का देखो आपको परचेज दिखेगा, परचेज और सेल्स. मोना नैना वाले एंट्री में देखो परचेज कितने से डेबिट हुआ और सेल्स कितने से क्रेडिट हुआ है, देख लेने का. परचेज डेबिट हुआ है 7520 से, सेल्स क्रेडिट हुआ है 7600. तो प्रॉफिट क्या हुआ? 7600 माइनस 7520, 80 रुपीज. इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. Gross profit. Credit now. We need to see what cash. No. Never see the cash or bank. Never ever. कैश और बैंक को देखना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग कौन सी सिस्टम फॉलो करते हैं याद है? एक्सपेंस और इनकम के लिए कैश सिस्टम फॉलो करते हैं कि अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं? अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं. तो अक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है? इनकम एंड एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड ऑन अर्न्ड एंड इनकर्ड बेसिस. कैश आगे पीछे आने दो, आएगा वो अपने आप, टेंशन मत लो उसका. इनकम इनकर्ड और अर्न, एक्सपेंस इनकर्ड और इनकम अर्न, मतलब सेल्स जहां पे क्रेडिट हो रहा है वो आपकी इनकम, परचेज जहां डेबिट हुआ वो आपका एक्सपेंस. सिंपल, बैठा दिमाग में? सेल्स जिधर क्रेडिट हुआ वो इनकम, परचेज जिधर डेबिट हुआ वो एक्सपेंस. तो सेल्स माइनस परचेज, दैट कम्स टू 80 रुपीज ऑफ प्रॉफिट. दैट इज ग्रॉस. ग्रॉस प्रॉफिट मतलब खाली परचेज सेल का ट्रेडिंग प्रॉफिट. और उसके बाद ये दो और थे, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड. दिखा? तो डिस्काउंट रिसीव्ड वाज इनकम, डिस्काउंट अलाउड वाज एक्सपेंस. उधर 10 रुपया और कमाया. So finally net profit was 90 rupees. Net profit was 90 rupees. Got it? 80 rupees of gross profit plus 10 rupees of discount. Total 90 rupees. हमेशा thumb rule है for any business, याद रखना है. How do you calculate profits? Your profits or losses are the result of your income minus expense. All incomes minus all expense will give you profit or loss. Is that clear? Okay, so that completes our problem. Let's go to the next one, 12th problem. Now 12th problem कोई particular business का problem नहीं है. जैसे हमने TD/CD किया था वैसा प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है. ठीक है, तो इसमें डेट मत लिखना, इसमें आप लोग सीरियल नंबर का कॉलम बना लेना. सीरियल नंबर लिख देना. Okay, all these are mixed entries, all these are very varied different entries. All different possible examples have been covered in one single problem. Everything in journal, everything in bookkeeping is based on journal. सब कुछ जर्नल के ऊपर डिपेंडेंट है. तो अगर आपको जर्नल अच्छे से आता है तो आपने आधे से ज्यादा बुककीपिंग सीख लिया, समझ लो. जर्नल इफ यू नो प्रॉपरली, यू आर थरो विथ मोर देन हाफ ऑफ बुककीपिंग. ओके, इधर ही खत्म हो जाता है आपका. और जर्नल कैसे करने का? आपको गोल्डन रूल्स पे, ट्रेडिशनल या मॉडर्न. सिंपल. तो 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करो, क्लासिफाई करो, अप्लाई द रूल एंड ट्राई टू गेट द एंट्री.
तो ड्रॉ कर लो सब लोग प्रॉब्लम नंबर 12. Problem number 12. Okay, 12th sum. Yashvi, Virali, Rishita, Tanya, Deanshi, Smith, Ameya, Anuj, Dev. Turn on the videos. Now, first one. What have they given? Read properly. एकदम properly read करो. Started business with cash 10,000, goods 5,000, and a check of 10,000. बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया. क्या क्या लाया बिजनेस में उसने? कैश 10,000, goods 5,000, and check of 10,000. Okay. Can you tell me, Ria Gandhi, what are the accounts involved over here? Cash account, goods account, bank account and capital account. Very good. देखो यहाँ पे 3 चीजें ओनर ला रहा है, तो आप तीनों एंट्री को कंबाइन कर सकते हो. याद है आपको कंबाइंड एंट्री? पहले तो आप इंडिविजुअली सोचो क्या होना चाहिए एंट्री. अगर ओनर सिर्फ कैश लाता तो व्हाट शुड हैव बीन द एंट्री वीरती? अगर कैश लाता बिजनेस में तो if the owner would have got only cash, then what entry would have passed? Cash account. 1 second. Owner is getting only cash in the business. Then what would have been the entry? Cash account and capital account. Yes, perfect. Cash account and capital. Cash is coming in, debit what comes in? Yeah. Capital is the giver, right? Okay. अगर कीर्तना ओनर गुड्स लाता बिजनेस में तो एंट्री क्या होगा? If the owner would have got goods in the business, then what entry would have passed? Goods account debit to capital account. Yes, Kirtana. If the owner would have got goods in the business, what entry would have passed? Kirtana. Okay, Tanya. If the owner would have got goods in the business, क्या होना चाहिए था entry? Sir, cash account and purchase account. नहीं, goods owner ला रहा है business में. We are not buying. Acha. See, I don't know. Don't know. Tell me guys, anyone? Goods अगर ओनर ला रहा है तो कौन सा अकाउंट यूज करना है? अकाउंट या स्टॉक अकाउंट? Goods या स्टॉक? देखो goods के लिए there are 3 accounts we are using. Okay, whenever you buy goods you are using purchase account. Whenever you sell goods you will use sales account. Okay, and when the owner is getting, or if the goods are going out somewhere, lost, destroyed by fire, floods, then you use goods account या stock account. Is that clear? तो यहाँ पर 3 अकाउंट होंगे आपके, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट. ओके, तो यहाँ पर ओनर ला रहा है तो कौन सा अकाउंट यूज करना है? परचेज यूज करना है, सेल्स यूज करना है कि स्टॉक यूज करना है? तो 3 चीजें ओनर ला रहा है. देखो कैश लाता तो क्या होता? डोंट राइट दिस, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. Share the screen. कैश अकाउंट डेबिट शेयर नहीं किया है ना स्क्रीन शेयर? No, sir. No, sir. Sir, नहीं किया. जस्ट अ सेकंड, चला गया बीच में नेटवर्क की वजह से. अभी आना चाहिए, प्लीज देख लो. अगर ओनर कैश ला रहा होता तो आपका एंट्री क्या होता? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ये सबको समझ में आया? कैश इज कमिंग इन, कैपिटल इज द गिवर, ओनर इज द गिवर, राइट? गेटिंग दैट? अच्छा, अगर गुड्स लाता तो मैं लिखता यहाँ पे स्टॉक अकाउंट डेबिट या गुड्स अकाउंट डेबिट,
Okay, कॉलेज में पूछ लेना, some colleges prefer stock, some colleges prefer goods. Okay, just confirm with your college. So अगर ओनर कैश लाता तो कैश टू कैपिटल, स्टॉक या गुड्स लाता तो स्टॉक या गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सॉरी, सो स्टॉक या गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. एंड चेक ला रहा है, चेक के लिए कौन सा अकाउंट यूज करना है? बैंक. बैंक में पैसा जाएगा, याद है? चेक डायरेक्टली मनी गोज इनटू द बैंक. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. So all the three transactions are happening on the same day, right? So all the three transactions are happening on the same day. So you can combine the entry, right? So what should be your combined entry now? देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cash account debit, stock account debit, bank account debit to कैपिटल अकाउंट. ये क्या किया मैंने, कैसे कंबाइन किया, समझ में आया आपको? मैंने डेबिट को डेबिट ऐड कर दिया, क्रेडिट को क्रेडिट ऐड कर दिया. कॉमन अकाउंट्स आई जस्ट एडेड देम अप. इज दिस क्लियर? सो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि सब कुछ आ रहा है बिजनेस में. ओके, कैश एज एन एसेट बढ़ रहा है बिजनेस में, सो डेबिट करो. स्टॉक एज एन एसेट बढ़ रहा है बिजनेस में, डेबिट करो, बढ़ा. बैंक एज एन एसेट बढ़ रहा है, बैंक में पैसा बढ़ा, डेबिट करो. And who is the giver for all the three? All the three things are brought in by whom? Owner. Credit is the giver, capital is the giver. Is that clear? या फिर कैपिटल बढ़ गया, मॉडर्न कंसेप्ट अप्लाई करो, कैपिटल इंक्रीजेस, सो क्रेडिट. All of you got that? Can you tell me the amounts individually? Cash account debit, how much am I supposed to write? 10,000. 10,000. How much I'll write in stock account? 5,000. 5,000 का stock आया. How much I'll write in bank? 10,000 again. 10 again. Total is 25,000. That is capital. Total is 25,000. That is capital. तो मैंने क्या किया, ये तीनों एंट्रीज का कंबाइंड एंट्री पास किया. यहाँ पे मेरे पास 3 एंट्रीज थी. ये 3 एंट्रीज आपको दिख रही है नीचे. कैश टू कैपिटल 10, स्टॉक टू कैपिटल 5, बैंक टू कैपिटल 10. सेम डे पे अगर ऐसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जहां पे you have a common debit or a common credit, so you can always join them, you can always merge them. Is that clear? So cash, bank, stock to capital. ये cash, bank, stock ऊपर नीचे हो गया, टेंशन मत लेना, अमाउंट खाली बराबर होना चाहिए. ठीक है, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट. बैंक कैश स्टॉक, स्टॉक कैश बैंक, स्टॉक बैंक कैश, कुछ भी लिखो चलेगा. ओके, बट अमाउंट लाइन में करेक्ट लिखना. डेबिट का कैश में कैश, बैंक में बैंक, स्टॉक में स्टॉक. ओके, so I'm just erasing this. ये लिखना का नहीं है. Now नरेशन लिखना, being cash, stock, check introduced in business as capital. Okay, introduced in business as capital. Is that clear? Okay, fine. The next one, second one, देखो ध्यान से अभी क्या दिया है, एकदम पढ़ो, एकदम perfectly. Commenced business with cash 15,000, machinery 10,000, stock 10,000, horse 5,000. 1/3 of the cash was borrowed from Vishal. अब ये borrowed देख के कुछ Vishal's loan. Vishal's loan account. Vishal's loan account. Vishal's loan. I just wanted to, I always get confused. So what will happen when commenced with business means being capital introduced only, no? Yes, commenced business मतलब capital introduced, true. Okay. Commenced business मतलब capital, started, commence, start किया मतलब ओनर ने पैसा डाला. Borrowed का मतलब क्या है, लोन लिया. अब मुझे जरा देख के बताओ, आपने कितने रुपए का लोन लिया है? 5,000. देखो हिंट दिया हुआ है वहां पे, रीड प्रॉपर्ली ऑल ऑफ यू. व्हाट हैव दे गिवन? 1/3 of the cash was borrowed from Vishal. Did you all see that? 1/3 of the cash. What is the total cash coming in the business? 15,000. So 15,000 का 1/3. Now please don't write this. This is just for your understanding. Okay.
15,000 का 1/3 इज 5,000। ये सबको समझ में आया? आपने जो 15,000 रुपया बिजनेस में लाया, बिजनेस में दैट 15,000 इज व्हाटएवर कमिंग इन, उसमें से 5,000 इज लोन का कैश, तो बाकी 10,000 कौन लाया होगा? बाकी ओनर लाया होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। व्हाट आर द टू थिंग्स हैपनिंग? ओनर भी ला रहा है कुछ आइटम्स और बोरो भी किया है हमने थोड़ा सा लोन। ओके, ओनर भी कुछ ला रहा है और हमने बोरो भी किया है। So whatever owner has brought in as capital and whatever we have borrowed from someone else is our external liability. No. See, always remember guys, आपको कहीं पर भी लोन या बोरोड दिख जाए, लोन या बोरोड मतलब वो कैपिटल है ही नहीं, मतलब दैट इज लोन। If you see the term loan or borrowed, that means it is not capital. That is a borrowing. आपने external liability borrow किया है। याद है, बताया था internal and external liability. बैंक लोन, लोन आप लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने borrow किया है, मतलब ये ओनर का पैसा नहीं है, ये लोन ही है। हाँ, अगर गिफ्ट दिया है, गिफ्ट, अगर ओनर को गिफ्ट मिला है, तो मुझे बताओ गिफ्ट वापस कोई देता है? आपका बर्थडे गिफ्ट आप कभी वापस दोगे 1 साल बाद विथ इंटरेस्ट? नहीं दोगे। तो गिफ्ट मतलब वो उसका खुद का हो गया। गिफ्ट मतलब कैपिटल। उसको पप्पा से गिफ्ट मिला, वाइफ से बर्थडे गिफ्ट मिला, फ्रेंड से गिफ्ट मिला। गिफ्ट मतलब इट इज ऑल ओनर जो भी बिजनेस में लाया, तो इट इज कैपिटल। ओके, बट बोरो किया है मतलब हमेशा लोन। बोरो मतलब लोन, लोन टेकन मतलब लोन। तो अभी एकदम ध्यान से देखना, मैं एंट्री फ्रेम कर रहा हूं। आपने बोरो किया है विशाल से, तो आपका क्या एंट्री होना चाहिए? खाली बोरोइंग का एंट्री बताओ मुझे। ये 5,000 क्रेडिट, Cash account debit to विशाल, कैश अकाउंट debit to Ram's loan account. तो राम्स नहीं है यहाँ पे, विशाल है भैया। राम अपने टेबल में था, क्वेश्चन में, टेस्ट में था। यहाँ पे विशाल्स लोन अकाउंट, राइट? क्रेडिट, हाँ, तो राम कैश अकाउंट डेबिट टू विशाल्स लोन अकाउंट क्रेडिट 5,000 rupees. Don't write this. This is just for your understanding. So cash to Vishal's loan. All of you got that? This is for the loan part. अच्छा, अभी tell me what about the remaining items? वो सब कौन लाया? Remaining cash of 10. ओनर, हाँ, ये सब ओनर ला रहा है ना, ये सब ओनर ला रहा है। Owner. तो अभी मैंने शुरू में एंट्री किया, ये देखो ओनर ला रहा है, कंबाइंड एंट्री। क्या आप बता सकते हो ये कंबाइंड एंट्री क्या होगा? जो चीजें ओनर ला रहा है। cash account debit, cash account debit, machinery account debit, stock account debit, livestock account debit, machinery account debit, To capital account. Correct. Cash account debit, machinery account debit, stock account debit, horse account लिखते हो क्या? livestock account, बत्ती चमका, animals in the business. Livestock account debit to what? capital account, Why capital? सबके लिए who is the giver? owner, Owner is the giver. Are all of you getting this? देखो, 4 ट्रांजैक्शन हुए यहाँ पे एक साथ। ओनर ने 4 चीजें लाई हैं, कैश भी लाया, मशीन भी लाया, स्टॉक भी लाया और घोड़ा भी लाया, दैट इज लाइफ स्टॉक। सो ऑल आर एसेट्स, मॉडर्न कंसेप्ट, ऑल एसेट्स आर इंक्रीजिंग इन द बिजनेस, सो डेबिट द एसेट्स एंड क्रेडिट कैपिटल इज इंक्रीजिंग, सो क्रेडिट कैपिटल। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? ऑल ऑफ यू गॉट दैट? बोलो अभी अमाउंट एकदम ध्यान से सोच के बताना। ओनर कितना कैश ला रहा है बिजनेस? ओनर 10,000. 15,000 ला रहा है कि 10,000 ला रहा है? 10,000. Total amount is 15,000, but 5,000 is total amount loan. of The amount that owner brings is 10,000. Exactly. Total amount of cash coming inside the business is 15, but owner is getting only 10. Are you getting this? So owner का 10. अच्छा, मशीन कौन लाया? मशीन Owner. मशीन तो पूरा का पूरा ओनर लाया, तो 10,000। स्टॉक कौन लाया? ओनर लाया 10,000। घोड़ा कौन लाया? ओनर लाया 5,000। तो ओनर कितना लाया? ओनर कितना माल लाया बिजनेस में? 35,000. 35,000. That is capital, internal liability for the business. Did you understand? Now again, if you check these two transactions are also happening on the same day. Do they have anything in common? Please check and tell me. Cash दो- account debit. cash account, हाँ, दिख रहा है ये कॉमन पार्ट, कैश डेबिट। Debit. तो जैसा कोई कॉमन डेबिट दिखे या कोई कॉमन क्रेडिट दिखे, तो आपको क्या करना है? combined, Combine Merge. Combine the entry.
तो अभी इसको मैं क्लब कर रहा हूं, तो एकदम ध्यान से देखना व्हाट विल बी माय कंबाइंड एंट्री। देखो यहाँ पे आई एम राइटिंग इट डाउन, डेबिट को डेबिट ऐड कर रहा हूं मैं। कैश अकाउंट डेबिट में मैं कितना लिखूंगा, देखो यहाँ पे 5 + 10 दोनों डेबिट ऐड कर रहा हूं मैं। क्लब करना मतलब क्या, डेबिट को डेबिट ऐड करो, क्रेडिट को क्रेडिट ऐड करो, जो कॉमन अकाउंट है उसमें ऐड कर दो, डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट 15,000, डिड यू ऑल गेट दैट? 15 कहां से टपका, समझ में आया सबको? देखो कैश का 5,000 इधर था, 10,000 इधर था, 5,000 लोन वाला कैश, 10,000 ओनर वाला कैश, टोटल कैश 15। ओके, बिजनेस में 15,000 आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट इंक्रीजेस, सो डेबिट। देन व्हाट, और क्या आ रहा है, मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी टोटल कितना आया, ओनली 10। फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट, ओके स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक कितना आया, 10,000। फिर लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना आया, 5,000 बराबर 2। अभी 2 में मैं क्या लिखूंगा, खाली कैपिटल खाली लोन की दोनों? दोनों। तो 2 विशाल्स लोन अकाउंट, 2 विशाल्स लोन अकाउंट कितना है, लोन, लोन कितना है 5,000। कैन यू सी दिस 5,000? एंड 2 कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितने से क्रेडिट किया मैंने, 35,000। इसको कहते हैं कंबाइंड एंट्री या कंपाउंड एंट्री। कंबाइंड एंट्री या कंपाउंड, आपको पता है सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस किया है ना इंग्लिश में आपने, सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो दिस अगर आपके पास सिंगल डेबिट क्रेडिट वाला एंट्री है, जो आज हमने मॉर्निंग में तीनों किया, ये वाले, ये वाले, ये दोनों, these are simple entry, single debit single credit. Okay, when you have multiple debits or multiple credits, they are called as compound entry or combined entry. Your objectives में पूछ, total capital is becoming 40,000. no boss, no. But to capital is, but if you do the total of credit, it is becoming 40, no? हाँ, तो डेबिट का भी तो टोटल 40 है, करो। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल 40 ही आएगा, दिख रहा है यहाँ पे। हेलो, यही चीज आप लोग देखो बैलेंस शीट से समझो इसको। बैलेंस शीट मैंने बताया था, याद है फर्स्ट लेक्चर, बैलेंस शीट। ओनर कितना पैसा लाया, ओनर क्या क्या ला रहा है, देखो ओनर ला रहा है कैश, मशीन, स्टॉक, लाइव स्टॉक बराबर, और बाकी लोन है। तो ओनर ला रहा है 35 का माल, लोन है 5,000, कैश है 15, मशीनरी 10, स्टॉक 10, लाइव स्टॉक 5। ये आपका बैलेंस शीट। कुछ समझ में आया क्या बनाया मैंने? ये हिब्रू, ग्रीक, लैटिन लग रहा है? नहीं समझा। समझा, क्लिक हुआ? बैलेंस शीट का लॉजिक समझा? ये क्या है, ये एसेट्स हैं, ये सब बिजनेस ओन करता है। ये इंटरनल लायबिलिटी, और ये लोन क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। हाँ, कैपिटल इज इंटरनल, लोन इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। समझ में आई बात? यस सर, थैंक यू। चलो आगे जाते हैं, नरेशन लिख दो। बीइंग कैश कॉमा मशीन कॉमा स्टॉक कॉमा लाइव स्टॉक इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस एज कैपिटल, एंड लास्ट में लोन का बिल लिखने का, पार्ट कैश बोरोड एंड पार्ट कैश बोरोड। ओके,
ओके नाउ यशराज खानिया, तू कुछ कांडी तो नहीं कर रहा है ना? हमेशा तू स्पॉटलाइट पे आ जाता है, मेरा वीडियो बंद होता है। नाउ एकदम ध्यान से, ओके देखो नरेशन लिखना सब लोग। बीइंग कैश, मशीनरी, स्टॉक, लाइवस्टॉक इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस एज कैपिटल एंड पार्ट कैश borrowed. Okay, part cash borrowed. Cash, machine, livestock, stock introduced in business as capital and part cash borrowed. All of you clear with the individual and combined entry? Anyone any difficulty? Tell me. Individual or combined, दोनों समझ में? The entry that we did right now is compound, no? हाँ, compound या combined entry बोला जाता है। और उसके ऊपर वाला combined था। अरे दोनों combined compound एक ही होता है। अच्छा। हाँ, combined and compound is one and the same. Okay. सिंगल डेबिट सिंगल क्रेडिट मतलब सिंपल एंट्री, मल्टीपल डेबिट या क्रेडिट मतलब कंपाउंड एंट्री या कंबाइंड एंट्री। तो ये मैं उड़ा देता हूं यहाँ से, सिंपल एंट्री अपने को नहीं करना है यहाँ पे। ओके, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला ऑन द सेम लाइंस है, थोड़ा दिमाग लगाने का। देखो थर्ड वाला देखो, सोल्ड पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ₹50,000 फॉर 75,000 and invested 60,000 in business. अभी इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका एंटिटी कंसेप्ट। व्हाट डज एंटिटी कंसेप्ट स्टेट? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट एंटिटीज। आप पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदो बेचो कुछ भी करो, क्या बिजनेस को कोई लेना देना है? इसमें सिर्फ कैपिटल और कैश ही होगा कंसीडर। हो गया नेटवर्क को। होगा शायद। Am I audible clearly, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, So okay. can we keep our videos off today for better bandwidth? Yeah, no problem. चलो वीडियोस ऑफ करो, चलेगा। ओके, बट सुनना और लिखना सो मत जाना। Now, you can keep the videos off for today. See, sold personal property of ₹50,000 for 75,000 and invested 60,000 in running business, in business. अभी मुझे जरा सोच के बताओ, एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज, राइट? Think from the point of view of the business. हाँ, think from the point of view of business. तो अगर पर्सनली बिजनेसमैन कुछ भी कर रहा है, उसका बिजनेस को कोई लेना देना है? नहीं। पर्सनली कुछ भी करो, आप प्रॉपर्टी खरीदो बेचो, घर खरीदो बेचो, घर की पर्सनल गाड़ी खरीदो बेचो, बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है बॉस। बिजनेस क्या देखेगा? बिजनेस ये देखेगा बिजनेस में क्या आ रहा है और बिजनेस से क्या जा रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के बताओ, बिजनेस में कुछ आ रहा है कि कुछ जा रहा है, क्या हो? कैश और कैपिटल कैपिटल आ रहा है। देखो ऐसे दिमाग चलना चाहिए। बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कैश आ रहा है, कौन ला रहा है ये कैश? ओनर ला रहा है। कितना ला रहा है? 60,000 ला रहा है। तो बस बिजनेस सिर्फ उसी का एंट्री करेगा, बाकी सबको मारो गोली, इग्नोर। इज दैट क्लियर? तो आपको बोलेगा जानबूझ के सोल्ड पर्सनल प्रॉपर्टी, बॉट पर्सनल शेयर्स, सोल्ड पर्सनल शेयर्स। ये पर्सनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बराबर है? पर्सनल कुछ भी करे अपने को लेना देना नहीं है। बिजनेस में आ रहा है तो एंट्री करो, बिजनेस से जा रहा है तो एंट्री करो। समझ में आया बात? तो एंट्री क्या बनेगा आपका? व्हाट विल बी द एंट्री? कैश account debit to debit to capital account. Cash account debit to capital account. All of you got that? Asset बढ़ा debit, capital in capital बढ़ा तो credit. कितना amount? 60,000. 60,000 rupees being capital introduced in business. Being capital introduced in business. Being capital introduced in business.
तो पहला पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल शेयर, पर्सनल हाउस, करने दो उसको जो करना है, अपने को लेना देना नहीं है। बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू पे रहो साथ। ओके, पर्सनल का पर्सनल अकाउंट टैक्स में हो जाएगा उसका सेट, अपने को इधर लेना देना नहीं है कुछ। नेक्स्ट वाला देखो, फोर्थ वाला, सीधा फोर्थ वन। बिजनेसमैन रिसीव्स अ गिफ्ट ऑफ 5,000 एंड इन्वेस्टेड द सेम इन बिजनेस। देखो गिफ्ट मिला और उसने बिजनेस में लाया, तो मुझे जरा सोच के बताना, गिफ्ट का मतलब लोन होता है कि कैपिटल? कैपिटल। गिफ्ट इज नॉट लोन, गिफ्ट इज कैपिटल। डिड यू अंडरस्टैंड? गिफ्ट आप किसी को वापस नहीं करने वाले, गिफ्ट आपका खुद का है। उसको बर्थडे गिफ्ट मिला होगा, एनिवर्सरी गिफ्ट मिला होगा, 5,000 रुपया रोकड़ा, तो लाया बिजनेस में वो पैसा। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? Capital. कैपिटल। और क्या मतलब किस फॉर्म में आ रहा है? कैश। बराबर है, कैश आ रहा है 5,000। So again, what should be your journal entry? Can you tell me? Cash account Debit to capital Cash account. account debit to capital account. Debit what comes in, credit the giver. या फिर कैश बढ़ा, एसेट बढ़ा तो डेबिट, कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट। 5,000 rupees. 5,000 rupees. Is this clear? This is capital introduced in business again. Being capital introduced in business. So ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जिस तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि भैया ओनर कैपिटल ला रहा है। ये अलग अलग वेज है जिससे आपको पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर? सब कुछ, सबका मतलब एक ही है, ओनर ला रहा है, कैपिटल है। तो दैट वाज फोर्थ वन। ओके, कंफर्टेबल हो गया फोर्थ तक सबका। फिफ्थ वन, ओके। सोल्ड पर्सनल मोटर कार, वापस एकदम ध्यान से पढ़ना। सोल्ड पर्सनल मोटर कार, ऑल ऑफ यू रीड केयरफुली। सोल्ड पर्सनल मोटर कार ऑफ रुपीज 18,000, 18,000 की खुद की गाड़ी थी घर की, वो बेच दी। और क्या मिला उसको? कैश ऑफ 10 एंड गुड्स ऑफ 8। उसने रिटर्न में कैश और गुड्स ले लिया पर्सनल गाड़ी बेच के। एंड इन्वेस्टेड द सेम इन बिजनेस। अभी मुझे बताओ बिजनेस में क्या आ रहा है? Capital and stock. और गुड्स आ रहा है, गुड्स भी आ रहा है ना? Cash account debit, capital goods account debit to capital. हाँ, ये बैठना चाहिए दिमाग में। देखो ओनर ने क्या किया, पर्सनल गाड़ी बेची। आर वी बॉदर्ड अबाउट पर्सनल ट्रांजैक्शंस? No, we are not bothered about personal transactions, right? All of you got that? Personal transactions का कोई लेना देना नहीं है, forget that. What did he get by giving his personal car? Personal car दे के गुड्स मिला और कैश मिला। अभी वो सब बिजनेस के बाहर है, अब तक हमें कोई लेना देना नहीं था। फिर ओनर ने क्या किया, वो जो उसको गुड्स और कैश मिला था, he invested the same in business. मतलब वो कैश और गुड्स बिजनेस में ला रहा है। तो बिजनेस में दो एसेट्स आ रहे हैं। What are the two assets coming in the business? Cash account और goods account. And दोनों कौन ला रहा है? Owner. Owner ला रहा है। So can you combine the entry? Cash account debit to goods account debit to capital account. हाँ, cash account debit, goods account या फिर stock account debit to capital. Yes, tell me. Doubt है? यानी किसका था? Cash account debit, stock account debit to capital account. Okay. So cash, how much cash are we getting? How much cash are we getting? How much cash are we getting? 10,000. 10,000 rupees. 10,000 cash. 10,000 cash we are getting. Okay. Debit what comes in? Asset. Stock. Debit what comes in? Asset. RX. Debit what comes in? Yeah, modern concept. Assets बढ़ा तो debit और capital बढ़ा तो credit. 18,000. Okay. Always debits will be equal to credits. Double entry system कर रहे हो आप. Being capital introduced in business. Being capital introduced in business. You can also write cash and goods introduced as capital. या simply capital introduced in business. Narration आपको बताया है. No hard and fast rule in narration. You can write this statement on your own, in your own words. It should just start with the word being. उसका format है वो being से start होता है. पुरातन परंपरा चली आ रही है तो हमें करनी पड़ती है. बाकी कोई भी अपना ओन वर्ड्स में लिखो चलेगा. ओके, गाना मत लिखना, ओन वर्ड्स में लिखना. कुछ सूझ नहीं रहा है तो अपना क्वेश्चन कॉपी कर लेना.
आगे बढ़े। पहले 5 ट्रांजैक्शन में किसी को कोई डाउट्स बताइए कृपया। एनी डाउट इन द फर्स्ट 5 ट्रांजैक्शंस? इनिसा को समझ रहा है, साहिल को समझ रहा है, जिया सावला। चलो नेक्स्ट वन। Purchased 5 tables of 500 rupees each and 2 chairs of 1000 each, paid for transportation cost 500. Now we have already learned how many concepts in accounts bookkeeping? कितने concepts पढ़े हमने याद है? Entity concept, business and businessman are two separate entities. दूसरा हमने पढ़ा going concern concept. Business will run for a long period of time. फिर हमने उसी का एक corollary पढ़ा, that was periodicity. Divide the period of the business into smaller parts, generally a year, to calculate your profit or loss. फिर हमने सीखा accrual क्या बोलता है? Show your expenses and incomes on incurred basis. पैसा आया गया important नहीं है, income earned और वो record करना है, expense incurred वो record करना है, time basis on basis वो record करो, incurred basis. फिर पांचवा हमने Matching concept क्या बोलता है कि match your expenses with your incomes. मतलब 1 साल का इनकम है तो 1 साल का खर्चा, 3 महीने का इनकम है तो 3 महीने का खर्चा को जब भी प्रॉफिट लॉस ढूंढना है मैच करके ढूंढने का। 6 महीने का इनकम है, 6 महीने का एक्सपेंस, राइट। अभी कंसेप्ट नंबर 6 इसको कहा जाता है कॉस्ट कंसेप्ट। क्या कहा जाता है? कॉस्ट कंसेप्ट। ओके, अब ये कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है आपको? कॉस्ट कंसेप्ट इज मेनली एप्लीकेबल टू ऑल द फिक्स्ड एसेट्स। व्हिच एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं पता है? हमने डेफिनेशन में सीखा था फिक्स्ड एसेट्स। व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स? डू यू रिमेंबर? Remain for longer than 1 year. Yes, they remain for a long period of time in the business, right? They are called as fixed assets. Can you give me? Right. Property. Then furniture, air conditioner, computer. Okay, all these are called as fixed assets. Now ये cost concept क्या बोलता है? सुनो ध्यान से, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है? आपने घर में एसी लाया, एयर कंडीशनर लाया, 40,000 रुपीज का लाया, 2 टन का एसी लाया आपने। कितने का लाया? 40,000 रुपीज का। आपने वो एसी लाया, यूनिट लाया, अब वो एसी सीधा कूद के दीवार पे बैठ के अपने आप चालू हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। उसमें आपने देखा होगा अगर स्प्लिट एसी है तो आपको ड्रिल करना पड़ता है, होल्स वगैरह। विंडो एसी है तो विंडो में आपको होल करके बॉक्स लगाना पड़ता है, और फिर पीछे ट्यूबिंग, पाइप्स लगाना पड़ता है। उसका और खर्चा होता है इंस्टॉलेशन का, आपको पता होगा, राइट? तो अगर 40,000 का एसी है बराबर, उस पे और कितना खर्चा हो गया? 5,000 समथिंग। अगेन आई थिंक नेटवर्क इज डाइसी। हाँ जी, सब तकलीफ हो रहा है। मॉर्निंग इट वाज वर्किंग फाइन। SYJC बराबर हो गया आज। FYJC में चलो, ऑडिबल? सर आपका स्क्रीन शेयरिंग चला गया। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग मैंने वापस किया, नहीं आया क्या? Is it now visible? No, sir. No, sir. Just a second. Screen sharing failed to start. So कैसा? Just a second. Yeah,
I think it should be visible now. Yes. Yes, visible now. So I was talking about the cost concept. आपने एयर कंडीशनर लाया, ठीक है, आपने एयर कंडीशनर लाया 40,000 रुपीज का. कितने का लाया? 40,000 रुपीज का. अब वो 40,000 रुपीज का एयर कंडीशनर आपको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, फिट करवाना पड़ेगा ऑन द वॉल. उसका ट्यूबिंग, पाइपिंग, इंस्टॉलेशन का खर्चा हो गया और 5,000. सो व्हाट इज द टोटल खर्चा कंडीशनर? कैन यू टेल मी? 45,000. व्हाट इज द टोटल? अरे So I have got an air conditioner of 40,000. I'm installing it for 45. Okay, 5,000 रुपए और खर्चा हो गया मेरा उस पे. तो अगर आपके घर पे कोई आएगा, मेहमान आएगा या कोई आएगा देखने के लिए, और उसने कहा कि एयर कंडीशनर तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कूलिंग दे रहा है, ये वो, कितने का आया? तो आप क्या बताओगे? ये 40,000 का था और इंस्टॉलेशन के साथ कितने का पड़ा? 45 में पड़ा. ये समझ में आ रहा है बात आपको? तो आपका 40,000 का एयर कंडीशनर था, इंस्टॉलेशन वगैरह करने के बाद आपको कितने में पड़ा टोटल? 45,000 में पड़ा. अभी आप मुझे बताओ, ये 45,000 के बिना एयर कंडीशनर स्टार्ट हो सकता था कि नहीं? No. बराबर है, नहीं हो सकता. तो बिजनेस में हम इसको कॉस्ट कंसेप्ट बोलते हैं. कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीद के लाते हो, सुनना ध्यान से, जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीद के लाते हो तो उसको यूजेबल कंडीशन में लाने तक जो भी खर्चा हो रहा है ना, कौन सा खर्चा? उस एसेट को वर्किंग कंडीशन में, यूजेबल कंडीशन में लाने तक जो भी खर्चा हो रहा है, एवरीथिंग यू एड अप टू द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट. एवरीथिंग यू एड अप टू दैट कॉस्ट ऑफ दैट. मतलब वो एसेट ही है, वो एक्सपेंस नहीं है बॉस, वो एसेट ही है. क्योंकि एक्सपेंस का बेसिक चीज आपको बता था. एक्सपेंस का मतलब हर साल इनकर होता है, एवरी ईयर रिकरिंग होता है, एवरी ईयर रिकरिंग होता है, उसको एक्सपेंस बोलते हैं. अब आपने एसी लाया और उसको फिटिंग करवाने का खर्चा है समझो 5,000. क्या आप हर साल इनकर करोगे? नहीं. वन टाइम का खर्चा है, एसी स्टार्ट करने के लिए हुआ है आपका. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो वन टाइम का खर्चा, जस्ट टू स्टार्ट द एसी यू हैव डन इट, so that will be added up to the cost of the asset. That will be added up to the cost of the asset. Is that clear? तो ऐसे ही कोई भी फिक्स्ड एसेट हो, सुनना गाइस एकदम ध्यान से, कोई भी फिक्स्ड एसेट हो, उस पे जो भी खर्चा हो रहा है, कोई भी फिक्स्ड एसेट हो, उस पे जो भी खर्चा हो रहा है, टू ब्रिंग द एसेट टू यूजेबल कंडीशन, विल बी एडेड अप टू द कॉस्ट, will be added up to the cost of the asset. Yes, sir. And the same. Sorry guys, again the same problem. चलो अभी मैं स्क्रीन शेयर थोड़ा ऑफ ही रख रहा हूँ 2 मिनट के लिए, अभी कुछ लिख नहीं रहा हूँ. तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि एनी एसेट विच इज परचेज्ड, एनी एसेट दैट इज परचेज्ड, और उस पे कोई भी खर्चा होता है, ओके, दिस गोज फॉर ऑल द एसेट्स. कोई भी एसेट आप फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, उसको यूजेबल कंडीशन में लाने तक जो भी खर्चा होता है ना, वो अलग एक्सपेंस नहीं है, अलग अकाउंट नहीं है. All these things will be added up to the cost of the asset. Is that clear? All the things will be added up to the cost of the asset. Are you all getting that? तो मुझे एक बात बताओ, अब आपने कोई गाड़ी खरीदी बिजनेस के लिए, मोटर कार, ओके,
मोटर कार खरीदी बिजनेस के लिए। अच्छा, वो मोटर कार आपको लानी पड़ी से फ्रॉम शोरूम से यहाँ पर लानी पड़ी, या फिर उसमें आपको कुछ सर्विस का चार्ज देना पड़ा, या फिर कुछ सेल्समैन का कमीशन देना पड़ा, या कुछ साइनिंग डॉक्यूमेंट्स का पैसा देना पड़ा। तो कार थी आपकी 5 लाख की, ऊपर और 20,000 खर्चा हो गया, तो टोटल कार की वैल्यू कितनी गिनी जाएगी? 5,20,000 अकॉर्डिंग टू कॉस्ट। आप अगर जर्नल एंट्री करोगे उसकी, तो आपकी एंट्री होगी कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,20,000। कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,20,000। आप ऐसे नहीं लिखोगे कार अकाउंट डेबिट 5 लाख, एंसिलरी एक्सपेंस डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट। नहीं 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 भैया नहीं। अगर कोई फिक्स्ड एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने तक का खर्चा हो रहा है, आई एम टेलिंग सी यूजेबल कंडीशन में लाने तक, तो उसको यूजेबल कंडीशन में एक बार ला दिया, उसके बाद तो खर्चा करो, उसके बाद सब रेवेन्यू एक्सपेंस हर साल वाला है। फॉर एग्जांपल एसी आ गया, 45,000 का एसी आ गया, राइट? एसी आने के बाद हर 3 महीने आपको सर्विस करवाना पड़ता है उसको, वो सर्विसिंग का खर्चा है, सर्विसिंग कॉस्ट, दैट इज नॉर्मल एक्सपेंस। रिपेयर्स, मेंटेनेंस, सर्विस वो एक्सपेंस है, वो एसी में ऐड नहीं करना है, वो एयर कंडीशनर में ऐड नहीं करना है। एक बार यूज करने तक का जो खर्चा हो रहा है वो आपको ऐड करना है। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। आपने मशीनरी लाया कोई, ओके, जैसे कि आप समझो कोई फैक्ट्री है आपकी जिसमें आप से नट बोल्ट बनाते हो, तो नट बोल्ट बनाने की वेल्डिंग की या फिर मोल्डिंग की मशीन लेके आए, मोल्डिंग मशीन लेके आए, ठीक है? तो वो मशीन का कॉस्ट था सपोज 1 लाख रुपीस, मशीन का कॉस्ट था कितना? 1 लाख रुपीस, और वो मशीन लाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया 10,000, उसको फिट करने का खर्चा हो गया 10,000, जगह पे फिट करने का 10,000, लाने का खर्चा 10,000, तो 1 लाख की मशीन पे 20,000 रुपया और खर्चा हो गया। फिर मैकेनिक ने बोला अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, अब आप इसको यूज कर सकते हो। तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना गिना जाएगा? 1,20,000। It will not be 1 lakh, it will not be 1,10,000। ऐसा मत समझना कि ट्रांसपोर्ट करके लेके आए तो भैया हो गया, नहीं भैया नहीं। उसको स्टार्ट करना है यूजेबल कंडीशन, बटन दबा के वो एसेट स्टार्ट होने तक का सब खर्चा विल बी एडेड अप टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। इसको कहते हैं कॉस्ट कंसेप्ट, और ये लॉजिकल है क्योंकि ये जो खर्चे हैं ये घड़ी घड़ी नहीं होने वाले। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये हर साल नहीं होंगे। तो अगर मैं इनको एक्सपेंस के जैसा दिखाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो जाएगा। एक साल में बड़ा खर्चा दिखेगा, नेक्स्ट ईयर में खर्चा दिखेगा ही नहीं, मेरा कंपैरिजन पूरा हिल जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड? तो ये कंपैरिजन नहीं हिलना चाहिए आपका, ओके? आगे जाके आप बड़े बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे पैसे, ओके, तो वहां पे आप ये सब चीजें देखते हो कि ये खर्चा आगे पीछे हिलना नहीं चाहिए आपका। कॉस्ट का खर्चा है, एसेट का खर्चा है, वो एसेट में ही दिखा देते हो, एक्सपेंस में नहीं दिखाते उसको। इज दैट क्लियर? वन टाइम एक्सपेंस, वन टाइम एक्सपेंस बोलते हैं उसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आगे लर्न करेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपने जमीन खरीदी, बिजनेस ने जमीन खरीदी 5 लाख रुपए की, कितने की? 5 लाख रुपीस की आपने प्रॉपर्टी खरीदी। अब क्या प्रॉपर्टी खरीदते हो तो क्या 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी हो गई, काम खत्म? इतना इजी होता है? जैसे फ्लिपकार्ट पे खरीदते हो वैसे प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, 5 लाख की स्टोरी ओवर, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की, आ गया होम डिलीवरी। ऐसा हो सकता है प्रॉपर्टी में? नहीं होता है ना। प्रॉपर्टी में क्या होता है, थोड़ी लीगल फॉर्मेलिटी होती है, तो कभी कभी लॉयर की फीस देनी पड़ती है आपको, कभी कभार आपको स्टैंप ड्यूटी होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, स्टैंप ड्यूटी होता है, यह सब चीजें आपको देनी पड़ती हैं। तो प्रॉपर्टी 5 लाख की थी, आपको ऊपर और 30,000 का एक्सपेंस हो गया ये सब। मुझे बताओ टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी हो गया? 5,30,000। उस पे आपकी लॉयर फीस, सॉलिसिटर फीस, आपका समझो कुछ स्टैंप ड्यूटी है, आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, ये सब ऐड हो जाएगा, सब ऐड हो जाएगा, ओके? कोई मशीन है, फर्नीचर है, तो ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, इंपोर्ट ड्यूटी, फ्रेट चार्जेस, कैरेज चार्जेस, जो भी फिक्स्ड एसेट को जो भी खर्चा हो रहा है to bring the asset to usable condition will be all added up to the cost of the asset. दिमाग में बैठा कि नहीं? Yes. The property tax is to be paid only when you buy the property, no? Yes, yes, only when you buy the property.
ओके, और यू सेल द प्रॉपर्टी तभी भी आता है उस पे, हाँ। सेल्स पे कैपिटल गेन्स आता है, पर उस पे एवरी ईयर रेवेन्यू नहीं देना पड़ता बाद में? नहीं इन्वेस्ट हो गया बाद में? नहीं, फिर कुछ नहीं, एक बार प्रॉपर्टी खरीद लिया फिर प्रॉपर्टी टैक्स भर लिया फिर कुछ नहीं। वो हर साल वो म्युनिसिपैलिटी टैक्स वो नॉमिनल रहता है, वो म्युनिसिपैलिटी टैक्स रहता है, दैट इज वेरी नॉमिनल, वो चिंदी अमाउंट रहता है। वो तो हर एक जितना भी मकान मालिक है ना, आप घर पे भी रहते हो आपको भरना पड़ता है वो म्युनिसिपैलिटी टैक्स, कितना भी प्रॉपर्टी रहेगा उस पर आपको म्युनिसिपैलिटी टैक्स ओनरशिप का भरना पड़ता है। एक खरीदते वक्त भर दिया फिर खत्म। तो प्रॉपर्टी टैक्स इज एसेट? प्रॉपर्टी टैक्स एसेट नहीं है, वो खरीदने के वक्त हुआ है ना आपका साथ में, तो वो एसेट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, अलग से नहीं दिखेगा कभी, समझा? तो अब अगर समझो इन दिस एग्जांपल, टेक नाउ द एग्जांपल इन योर सम, व्हाट हैव दे गिवन, रीड पॉइंट ट्रांजैक्शन नंबर 6, पढ़ो क्या दिया है। Purchased 5 tables of 500 each and 2 chairs of 1000 each and paid transportation cost of 500. Can you all see that? मुझे बताओ 5 टेबल 500 रुपए के, तो कितना हो गया ये? 2500. 1500. 2 chairs of 1000 each. 7500 हो गया? नहीं, 4500 प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ है उसको लाने का 5000. 5000. तो आपका टोटल फर्नीचर कितने का आया? 5000. टोटल फर्नीचर कॉस्ट इज 5000। तो आपका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? फर्नीचर अकाउंट debit to Will cash. you have transportation expense to cash का separated? No. That's what I was trying to explain इतने टाइम से। एक्सपेंसेस की अलग से कोई एंट्री करने की नहीं है। जो खर्चा एसेट को खरीदने पे हो, किसने पे हो रहा है? खरीदने पे हो रहा है, यूजेबल कंडीशन में लाने तक हो रहा है, वो एड अप कर देना है कॉस्ट के अंदर, ठीक है? तो राइट डाउन ऑल ऑफ यू, स्टार्ट करो, एंट्री लिखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लिख दो। योर एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना लिखोगे आप? 5000 रुपीज। 5000 रुपीज बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल में किसी को प्रॉब्लम? एंट्री फ्रेम करने में किसी को प्रॉब्लम? मॉडर्न कंसेप्ट भी दिमाग में रखना, एसेट बढ़ा तो डेबिट, कैश इज आल्सो एसेट, वो घटा तो क्रेडिट। Sir, but in the furniture cost, when we look at it, we just want to know that we had spent so much on travel. So in that sub, can we just write in the furniture account debit entry, can we just specify the transportation cost that we had paid? Specify that in the narration. You can specify that in the narration, but not in the account. Entry. हाँ, एंट्री में आपका फर्नीचर अकाउंट ही होगा। नरेशन में आपको जो मसाला लिखना है लिख सकते हो, all details. So why wouldn't it be capital? Why wouldn't it be capital? Very good question. Can you guys answer? Because we have purchased it. Owner It is purchased from the It is business not account. given Owner has not introduced it. हाँ, if it is given introduced by owner, invested by owner, proprietor, commenced, तो ओनर ला रहा है। ये तो खरीदा है ना, परचेज। सिंपल परचेज सेल मतलब बिजनेस एज डन। सिंपल परचेज सेल मतलब ऑलवेज बिजनेस एज डन। आपको पता चल जाएगा अगर ओनर ने कुछ किया है ना, तो आपको क्लियर कट हिंट होगा, कमेंस्ड, ब्रॉट बाय ओनर, इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, विड्रॉन बाय ओनर, पर्सनल, ऐसा कुछ पर्सनल का हिंट होगा, या फिर ऐसे नाम होंगे, लाइफ इंश्योरेंस, हाउस रेंट, डॉटर्स सन्स एक्सपेंसेस, सन स्कूल फीस, डॉटर्स स्कूल फीस, ये सब ऐसा कुछ नाम दिया होगा, हिंट्स दिया होगा आपको पर्सनल के। कुछ हिंट नहीं दिख रहा है पर्सनल का तो सब बिजनेस, पर्सनल का हिंट नहीं है मतलब सब बिजनेस का हो गया। 7th वन, गुड्स ऑफ रुपीज 3000 आर लॉस्ट बाय फायर। बत्ती चमका को इजी है, किया है हमने पहले। फायर अकाउंट डेबिट Fire account debit. फायर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? Goods lost by fire. हाँ, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। देखो ये गुड्स अकाउंट ही है, वन इज लॉस, वन इज गुड्स। लॉस इज डेबिट ऑल एक्सपेंस, गुड्स इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स के जगह पे आई एम राइटिंग व्हाट? गुड्स लॉस्ट बाय फायर, क्योंकि गुड्स के बहुत सारे डील होते हैं, हमने पहले भी किया है।
इसलिए हम लोग मल्टीपल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. ओके, गुड्स के काफी सारे डीलिंग होते हैं, तो दैट्स व्हाई वी मेंटेन मल्टीपल अकाउंट्स फॉर गुड्स. सो गुड्स lost by fire. So lost by fire to goods lost by fire is your entry. Okay. How much is your amount? Lost by fire to goods lost by fire 3,000. 3,000 rupees. Narration में लिखना being goods lost by fire. Being goods lost by fire. मुझे एक बात बताओ, ये लॉस बाय फायर कैश एक्सपेंस है कि नॉन कैश एक्सपेंस? दिमाग लगा. Non-cash. नॉन कैश एक्सपेंस है. क्या आपने किसी को कैश दिया? नहीं. आपके गुड्स जल गए, ये लो पैसा, मेरा गुड्स जल गया, ये लो पैसा. आप किसी को जाके पे करोगे क्या आपका कुछ जल गया तो? नहीं. गुड्स जल गया, गुड्स कम हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे. तो इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस. कैश इज नॉट रिड्यूसिंग, सम अदर एसेट इज रिड्यूसिंग. ऑलराइट, ऑल ऑफ यू गॉट दैट? Yes, sir, but I wanted to ask you this. Like when the goods are being transported and a part of the good is like lost due to lost or ट्रांसपोर्टेशन, उसको कहा जाता है लॉस इन ट्रांजिट. So the one from whom we are purchasing goods will pay us back those goods, or the loss is considered depends the between loss? this dealing seller, the clause agreement के ऊपर होता है. जनरली इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर. सेलर को बायर के गोडाउन तक गुड्स पहुंचाना होता है, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसमें कुछ भी लॉस वॉस हो गया तो वापस सेलर ही कॉम्पेंसेट करके देगा उसको. ऑलराइट. बट कभी कभार क्या बोलता है बायर, मैं आपके फैक्ट्री से उठा लूंगा गुड्स. तो फिर अगर फैक्ट्री से बायर के जा रहा है तो फिर ट्रांसपोर्टेशन में कुछ हो गया तो वो बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके. ना, तो डिपेंड्स कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, उसका लॉस रहेगा. ओके. 8th वाला देखो. Goods of 8,000 are lost in transit. Goods of 8,000 are lost in transit, transportation. He made a claim of 7,000, but insurance company admitted a claim of only 6,000 rupees. अब ये इंश्योरेंस का कैसा फंड है? देखो, इंश्योरेंस है ना, ये कुछ नहीं है, ये आपका कवर है. ओके. कवर का मतलब क्या? समझो आपने कैश में गुड्स बेचा होता तो आपका एंट्री क्या होता? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ये एंट्री करते हो आप इफ यू सेल द गुड्स फॉर कैश. यार अभी बराबर आ रहा है? अभी सुनो क्या बोल रहा था. इंश्योरेंस. इंश्योरेंस का मतलब दैट्स योर कवर. ओके. इंश्योरेंस कवर है. तो आपने अगर कैश में गुड्स बेचा है, ओके, इफ यू हैव सोल्ड द गुड्स फॉर कैश, व्हाट इज द जर्नल एंट्री व्हेन यू सेल द गुड्स फॉर कैश? टेल मी. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अग्री ऑल ऑफ यू? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होता है, ये पता है सबको. कैश इज कमिंग इन एंड सेल्स इज आवर इनकम. ओह गॉड. लेट्स डू वन थिंग. हेलो, ऑडिबल? बहुत हैरान कर रहा है ये स्क्रीन शेयरिंग, पता नहीं क्या इश्यू है. विल डू वन थिंग, विल स्टॉप ओवर हियर. ओके. 7th ट्रांजैक्शन पे हम लोग रुकते हैं और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. 8वें से 8 से हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. और आप होमवर्क ले लो अभी आज का. प्लीज टेक डाउन द होमवर्क. You have to do
Page number 41 of standard textbook. Page number 41 of standard textbook. Page number 41 of standard textbook. Question 6. Question 6 classification in both traditional as well as modern. Question 6 classification in both traditional as well as modern. ठीक है? Question 6 classification. Page number 41 standard textbook. Question 6 classification in both traditional and modern. ठीक है? Okay, so we stop at that 7th point. Cost concept समझ में आ गया सबको? Cost concept में कोई doubt है? Cost concept clear है? 7th तक किसी को कोई issue? 7th transaction? No, sir. Okay. So that's it. ये आप homework करके शाम तक भेज दो homework group में. Okay. और कुछ issues, doubts है तो you wait. I'll clear them out. Otherwise you leave. और जो 2 student है अपनी प्रसिद्धि and Smith, you guys wait. बाकी सब जाओ. चले. Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Ji, sir.